Good morning, students. We will continue our chapter Conventional Science for Weather Conditions. The facts and information received from observatories are indicated in the map with the help of figures, signs, and symbols which are accepted internationally. These are also called international weather indicators. These were given recognition in the International Meteorological Meet held in Warsaw, Italy in the year 1935. मौसमी दशाओं के संकेत। प्रेक्षण शालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों को 1935 में वारसा, जो कि इटली में है, आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्रदान की थी। इसका मतलब यह है कि ये जो चिन्ह या ये जो संकेत है, ये पूरे दुनिया में जब भी मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं तो इन्हीं चिन्हों का, इन्हीं प्रतीकों का उपयोग किया जाता है और विश्व भर में इसी के द्वारा मौसम मानचित्र दर्शाए जाते हैं। समझ में आया बेटा यहाँ तक? अब मैं आपको आपकी किताब में दिए हुए हैं वो दिखा देती हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये है वायु मापन संकेत। फिर इसके बाद देखो ये लिखा है मेघाच्छादन के संकेत, और फिर समुद्री तरंग संकेतक, और नीचे दिया है देखो मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत चिन्ह, धुंध, कुहरा, फुहार, हिम, दूरस्थ रजत प्रदीप्ति, कुहासा, छिछला कुहरा, वर्षा, ओला, तड़ित झंझा। ये जो मुख्य संकेत है जिनका मौसम मानचित्र में उपयोग किया जाता है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और इन्हीं के साथ देखो ये जो मानचित्र है ये संकेतों के साथ आपकी किताब में दिया हुआ है। हम आगे इसको पढ़ेंगे। नाउ द कन्वेंशनल साइन फॉर weather maps. Now look, signs to measure speed of the wind. These are the signs. This is given in your book. You can easily understand this, and therefore I show you the signs. Then indicators of the level of cloud and indicators of oceanic waves. These are the signs. And then some other signs of weather map: haze, fog, drizzle, snow, distant lightning, mist, shallow fog, rain, hail, thunderstorm. These are the signs which are used to prepare weather map, or weather maps are made with the help of these signs. Understand beta? Now interpretation of weather maps in India. Now look here. Format of interpretation of weather map: study of the indications. Information on the Indian weather map is done under following headings. So first heading is introduction, and in introduction which things are included? In introduction, day, date and time
is mentioned. I will show you. This is the weather map, and here weather map, rainy season 18 August 18:30 am. So the first, when we prepare and when we interpret weather map, the first is introduction, and introduction included day, date and time. And second, variation in temperature. How much temperature variation has occurred in is indicated with the help of isotherms on the weather map. This variation, that is more or less than the normal temperature, is indicated in terms of difference of every 2 degrees. This helps in knowing about cold wave or heat wave. On the basis of temperature variation map, we can explain the position of temperature variation. From the map, it is seen that the temperature in the 5 regions of India, that is North Gujarat, West Madhya Pradesh, Middle Rajasthan, Jharkhand and Uttar Pradesh, was 2 degrees Celsius more than the normal. I will show you the map. This is temperature variation map. 0 means normal temperature, and +2 means temperature variation 2 and +2. And from the map, it is seen that the temperature of the 5 regions, that is North Gujarat, then Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand and Uttar Pradesh. These are the regions where a temperature is (2 degrees Celsius more than the normal, and therefore the sign is +2. समझ में आ रहा है बेटा? वेरिएशन टेम्परेचर या टेम्परेचर वेरिएशन, आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो. टेम्परेचर वेरिएशन मैप. 0 means normal, +2 means more than normal temperature. Then third is variation in air pressure. This is the map of variation of pressure or pressure variation. Temperature maps are shown with the help of isotherms, and air pressure maps are shown with the help of isobars. What is isotherms and what is isobar? You know, you learn about it in previous classes. Now, variation in air pressure. Wind pressure is also indicated to know how much it is on higher or lower side of a normal pressure on surface. In the weather map, the air pressure is shown with the help of isobar. This is normally indicated by the difference between 2 millibars. The higher number shows high air pressure and the lower number shows low air pressure. Sometimes low pressure is indicated by writing L and high pressure by H. This is read like counter lines. The air always blows towards low pressure area from the higher pressure area. This is important. The air
always blows towards low pressure area from the high pressure area. Normal distribution of air pressure, high and low pressure zone. And second, speed of cyclones. With the help of isobar, we can explain the conditions of air pressure in the atmosphere from the map given. We see that the air pressure was 2 millibar less than the normal. Only in two zones the pressure was normal. The mountain region of North Bihar, Andaman and Nicobar and Eastern Myanmar, the air pressure was normal. Now in this map, where is the air pressure is normal? The 0 indicates the normal air pressure. So 0, where is 0? Here and here. And therefore the pressure is normal in this region. And after that, +4, +2 means where is +2? So +2 means the air pressure is more than normal pressure, and it is indicated by millibars, difference of 2 millibars. And 4, +4 means here temperature is here air pressure is more than the normal. Understand beta? Now this we will I will explain you in Hindi. तापमान का वितरण. सामान्य से ताप कितना अधिक या कितना कम है यह तापक्रम के विचलन से पता चलता है. यह विचलन सामान्य से अधिक या कम 2 डिग्री के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है. यह शीतलहर और उष्ण लहर ज्ञात करने में सहायक होता है. इसी प्रकार वायुदाब का भी विचलन दिखाया जाता है. इससे पता चलता है कि वायुदाब सामान्य से कितना ऊपर या कितना नीचे है. अब ये देखो, ये तापमान का ये दिया गया है आपके इसमें मैप लिखा है भारत तापमान विचलन. उपरोक्त तापमान विचलन मानचित्र द्वारा हम तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं. तापमान विचलन मानचित्र को देखने से तापमान के विचलन की स्थिति स्पष्ट होती है. भारत के 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य राजस्थान, झारखंड एवं दक्षिण उत्तर प्रदेश. देखो बेटा, जहाँ पे 0 और आपके मैप में दिया है +2, तो ये +2 जहाँ जहाँ पे ये +2 है वहाँ वहाँ पे क्या है, तापमान नॉर्मल से ज़्यादा है. अब ये कौन कौन से प्रदेश है, नक्शा देख के आपको दिया भी है आपके इसमें. और देखो, राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और इधर दक्षिण उत्तर प्रदेश. समझ में आ रहा है ना बेटा? ये +2 यहाँ पे जो जो स्टेट्स है वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तापमान का वर्णन कर सकते हैं. अब इसके बाद आता है, देखो तीसरा आता है वायुदाब विचलन. वायुदाब का वितरण. मौसम मानचित्र में वायुदाब को मिलीबार में दर्शाया जाता है. यह प्रायः 2 मिलीबार के अंतर से दिखाया जाता है. उच्च अंक वायुदाब को तथा निम्न अंक निम्न वायुदाब को प्रदर्शित करता है. देखो, +2 और +4. तो +2 का मतलब क्या, वायुदाब निम्न है, और +4 का मतलब वायुदाब उच्च है. कभी कभी
एल कम दाब के लिए मतलब लो कम दाब के लिए, एच यानी हाई अधिक दाब के लिए लिखा होता है। इसे समोच्च रेखाओं की तरह पढ़ा जा सकता है। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। ये बहुत ध्यान में रखने लायक बात है बेटा कि वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। वायु दाब का सामान्य वितरण उच्च व न्यून दाब क्षेत्र, समदाब रेखाओं की उपनीति, वायुदाब की प्रवणता, चक्रवातों की गति, और तीसरा है सामान्य वायुदाब से प्रवणता। अब देखो वायुदाब विचलन मानचित्र द्वारा हम मौसम के वायुदाब संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। वायुदाब रेखाएं द्वारा हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अल्पदाब गर्त एवं फान इत्यादि वायुदाब संबंधी दशाओं को जान सकते हैं। दिए गए वायुदाब विचलन मानचित्र से स्पष्ट होता है कि सामान्य से वायुदाब 2 मिलीबार कम रहा। केवल 2 क्षेत्रों में वायुदाब सामान्य रहा। उत्तर बिहार का पर्वतीय भाग, अंडमान निकोबार तथा पूर्वी म्यांमार में वायुदाब सामान्य है। देखो इन 2 जगह पे वायुदाब सामान्य है। बाकी सब जगह आपने देखा होगा -2, +2, +4। तो क्या होता है प्लस जहाँ जहाँ पे वहाँ पे उच्च दाब, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे नॉर्मल और निम्न दाब। -2 वगैरह क्या है निम्न दाब। आ रहा है बेटा समझ में? हाँ, अब आपको मैं पहले बताना चाहिए था पर अब बता देती हूँ। देखो आप जितने भी नक्शे देख रहे हो मौसम मानचित्र के, तो उसके ऊपर देखो रेड इसमें एरो करके लिखा गया है एन, है ना। एन का मतलब होता है नॉर्थ। जब भी हमें मानचित्र देखना है तो हमेशा आप लोगों को दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए। वैसे आप लोग 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता ही है, पर फिर भी हम एक बार थोड़ा सा उसको फिर से बता देते हैं कि ऊपर हमेशा होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, सॉरी हिंदी में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, बाएं होता है पश्चिम और दाएं होता है पूर्व। इंग्लिश में हम कहेंगे ऑन द टॉप नॉर्थ, हियर साउथ, इन द लेफ्ट वेस्ट एंड इन द राइट ईस्ट। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत में एक राज्य है जिसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल। उसका नाम है पश्चिम बंगाल, पर वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है पूर्वी दिशा में। इसलिए कभी कभी बच्चे अगर ध्यान नहीं दिया तो वो समझते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम दिशा में होगा, पर ऐसा नहीं है। भले ही उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, पर वो स्थित है पूर्वी दिशा में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसके साथ ही मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। आप लोग 9th में पढ़ भी चुके हैं। ये देखो ये इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। तीनों तरफ पानी से हमारा भारत जो है वो घिरा हुआ है, और एक तरफ पूरा लैंड मास है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेनिनसुला। 3 तरफ पानी और एक तरफ ज़मीन। बेटा देखो इसमें आप लोगों के इसमें दिया गया है ना कि भाई वायुदाब रेखाएं द्वारा हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अल्पदाब, गर्त एवं फान इत्यादि वायुदाब संबंधी दशाओं को जान सकते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे चक्रवात या अवदाब, और हमेशा चक्रवात के साथ हम पढ़ा जाता है प्रतिचक्रवात।
तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर मैं हिंदी में समझाऊंगी। अ साइक्लोन इज अ स्टॉर्म और सिस्टम ऑफ A cyclone is a storm or system of winds that rotates around a center of low atmospheric pressure. An anticyclone is a system of winds that rotates around a center of high atmospheric pressure. Distinctive weather patterns tend to be associated with both cyclones and anticyclones. Cyclones, commonly known as low, generally are indicators of rain, clouds, and other forms of bad weather. Anticyclones, commonly known as high, are predictors of fair weather. Winds in a cyclone blow counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Winds in an anticyclone blow just the opposite. Vertical air movements are associated with both cyclones and anticyclones. In cyclones, air close to the ground is forced inward toward the center of the cyclone, where pressure is lowest. It then begins to rise upward, expanding and cooling in the process. This cooling increases the humidity of the rising air, which results in cloudiness and high humidity in the cyclone. In anticyclones, the situation is reversed. Air at the center of an anticyclone is forced away from the high pressure that occurs there. High pressure and low pressure. That air is replaced in the center by a downward draft or air from higher altitudes. As this air moves downward, it is compressed and warmed. This warming reduces the humidity of the descending air, which results in few clouds and low humidity in the anticyclone. चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात अस्थायी और परिवर्तनशील हवाओं के गोलाकार या अंडाकार ऐसे क्षेत्र जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। अंदर निम्न और बाहर उच्च, और इससे विपरीत प्रतिचक्रवात में उच्च अंदर और कम बाहर। अस्थायी और परिवर्तनशील हवाओं के गोलाकार या अंडाकार ऐसे क्षेत्र जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न के वे क्षेत्र है जो कि संकेंद्रीय समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। चक्रवात में न्यून वायुदाब केंद्र के समीप और केंद्र के बाहर की ओर सभी दिशाओं में वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी सुई की दिशा में मुड़ जाती है। चक्रवात में तापमान हमेशा ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। इनका पृष्ठभाग हमेशा शीतल होता है। अब ये देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, देखो इसमें इन्होंने अल्पदाब लिखा है, तो इसका मतलब क्या कि अंदर लो प्रेशर और बाहर
हाई प्रेशर। और इससे उल्टा प्रति चक्रवात में अंदर हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर। ये आ गया है समझ में? प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का एक क्रम होता है, जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम तथा बाहर की तरफ न्यून वायुदाब होता है। अगर आप ये आकृति देखोगे बेटा तो देखो लिखा है ना, अंदर लिखा है उच्च दाब, और ये उच्च दाब क्या होता है? बाहर की ओर। मतलब क्या? उच्च दाब अंदर होता है और बाहर निम्न वायुदाब। और ये अगर आपको समझना है तो देखो उन्होंने डिग्रीज भी दी है, 1017 मिलीबार, और बाहर क्या है देखो 1014। तो अंदर है उच्च दाब और बाहर है निम्न वायुदाब। और इससे विपरीत आप देखो चक्रवात में अल्पदाब में उन्होंने दिया है 1008 बराबर, फिर बाहर दिया है 100। तो अगर आप ये मिलीबार देखोगे तो बाहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अंदर कम है, और प्रति चक्रवात में अंदर ज़्यादा है और बाहर कम कम होते जा रहे हैं। प्रति चक्रवात में इसी कारण हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती है, केंद्र से बाहर की ओर। ये केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर चलती है। प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। ये भूमध्य रेखीय भागों में बहुत कम पाए जाते हैं। प्रति चक्रवातों से मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलती है। प्रति चक्रवात नज़दीक आते ही आकाश से बादल छटने लगते हैं, मौसम साफ होने लगता है तथा हवा मंद पड़ जाती है। बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है चक्रवात और प्रति चक्रवात। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके लिए हम बनाते हैं दूसरा वीडियो।